Jai Hind everyone. Welcome to my channel once again. Today we are going to discuss about various national camps in NCC and specifically about the Republic Day camp and the event associated with it. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनसीसी में कितने नेशनल कैंप्स होते हैं and most of us are familiar with it. Like the first one is Republic Day Camp. As we all know that Republic Day Camp is a collection of activities जिसमें काफ़ी सारी activities होती है like culture हो गया, drill, then flag area, line area, best cadet. So all these activities are there in Republic Day Camp. And most important part that a cadet get opportunity to represent its directorate at national level and to also take part in Rajpath contingent on 26th of January. The another camp is Youth Exchange Program also known as YEP. तो YEP बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैडेट्स के लिए टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन अनदर कंट्री, लेट्स से सिंगापुर. So the cadet from one country, they interact with the cadet of another country and share their activity, NCC activities, take place in different competitions and also represent their country and share their culture. So it is also associated with Republic Day Camp because cadet from for YEP, they got selected from RDC itself. The another camp is services camp. It is different for all the three wings like Army, Navy and Air Wing. So the first, which is associated with Army Wing, is TSC, also known as Thal Sainik Camp. The another one is Vayu Sainik Camp, associated with Air Wing. And the last one is Nau Sainik Camp, associated with Naval Wing. Now there are some camp that are associated with culture. So the first one is National Integration Camp NIC and another one is Special National Integration Camp SNIC. एनसीसी में कुछ आपके कैंप्स ऐसे भी होते हैं that are associated with leadership. So they are basically basic leadership camp and advanced leadership camp. Now there are attachment camps as well. अटैचमेंट कैंप में आपके कैडेट्स को डिफरेंट एकेडमीज़ में ले जाया जाता है एंड वहाँ पे उनके कैंप कंडक्ट करवाए जाते हैं फॉर 10 days और 12 days एंड दे गेट टू नो अबाउट द डिसिप्लिन and the activities that are there in academy. So the attachment camps are IMA attachment and OT attachment. Now the another camp is RCTC, also known as Rock Climbing Training Camp. It is basically an adventurous camp जो कि उत्तराखंड में कंडक्ट करवाया जाता है. यहाँ पे कैडेट्स को सिखाया जाता है अबाउट रॉक क्लाइंबिंग एंड द टेक्टिक्स एसोसिएटेड विद इट. Now another camp is hiking and trekking camp. NCC time to time trekking activities करवाते रहते हैं and one of the trekking camp is of Darjeeling and another one is of Ajmer. Then there are also mountaineering courses in NCC. They are divided into two parts, that is basic mountaineering course and advanced mountaineering course. So firstly cadets get selected from their directorate. सबसे पहले बटालियन लेवल पे, देन ग्रुप लेवल पे एंड फाइनली डायरेक्टरेट लेवल से सेलेक्ट होके कैडेट्स माउंटेनियरिंग कोर्स को कंप्लीट करते हैं. देन एनसीसी आल्सो प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द फायरिंग फील्ड एंड फायरिंग एक्टिविटीज़. सो द कैंप विच इज़ एसोसिएटेड विद फायरिंग इज़ GV मावलंकर कैंप. अगेन इसमें पहले बटालियन ग्रुप से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं एंड देन द कैडेट्स हु गेट सेलेक्टेड फॉर द नेशनल कैंप, that is also known as GV Mahawalankar camp, they represent their directorate over there and compete with other cadets. The another camp is Cultural Prime Minister Rally, जिसमें आपके different cultural activities के cadets from song, dance and other cultural activities they take part in Prime Minister Rally, that is on 28th January. And the last one is Paratrooper camp and the events associated with it are parasailing and paraslithering. तो पैरासेलिंग के जो कैडेट्स होते हैं वो 28 जनवरी एंड अगेन पैरास्लिथरिंग के भी कैडेट्स जो होते हैं वो 28 जनवरी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइम मिनिस्टर रैली, इस दिन पार्टिसिपेट करते हैं इन PM रैली. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट नेशनल रिपब्लिक डे कैंप.
तो सबसे पहले हम आरडीसी के बारे में जानेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कितने कैडर्स होते हैं, देन कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और फाइनल कैंप में क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले रिपब्लिक डे कैंप के लिए हर एक कॉलेज से बच्चों को यूनिट लेवल पे भेजा जाता है, डेट इज़ बटालियन लेवल। वहाँ पे जो सेलेक्टेड कैडेट्स होते हैं दे टेक पार्ट इन इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन, जो कि 10 दिन का ही कैंप होता है। और रिपब्लिक डे कैंप के सिलेक्शंस आपके डायरेक्टरेट टू डायरेक्टरेट वेरी करते हैं। किसी डायरेक्टरेट में अप्रैल में शुरू हो जाते हैं, किसी में मई में स्टार्ट होते हैं। तो इन दिस वे द कैंप स्टार्टेड। जो बच्चे इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन से सेलेक्ट होते हैं दे आर फर्दर मूव टू इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन, जो कि अगेन 10 दिन का ही कैंप होता है नेक्स्ट मंथ। इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन में आपके कैडेट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। जो ड्रिल के कैडेट्स होते हैं, जिनकी ड्रिल अच्छी होती है, दे टेक पार्ट इन ड्रिल कॉम्पिटिशन, गार्ड कॉम्पिटिशन। जो कल्चरल के कैडेट्स होते हैं दे आर इनटू कल्चरल एक्टिविटीज़, और जो बेस्ट कैडेट होते हैं उनको बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जाता है। एंड देन फाइनली स्टार्ट होते हैं प्री आरडी कैडर 1। प्री आरडी कैडर 1, कैडर 2 एंड कैडर 3 में अगेन कैडेट्स को फर्दर फिल्टर किया जाता है और उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे और उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है। और अगेन उन एक्टिविटीज़ को पॉलिश किया जाता है फ्रॉम कैडर टू कैडर, ताकि जो कैडेट्स हैं वो हर एक कैडर के साथ अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। और फाइनली आपका कैडर होता है फाइनल कैडर, जिसमें फाइनल कंटिजेंट बनाया जाता है टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्टरेट एट नेशनल लेवल, जो कि दिल्ली कैंट में आपका कैंप होता है फाइनल आरडीसी। और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं कैडेट्स की, उनको एक फ़ाइनल फिनिश दिया जाता है और जितना भी लगेज है एसोसिएटेड विद रिपब्लिक डे कैंप, जो भी आपका सामान है, यूनिफॉर्म है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑल्सो देयर आर अदर एक्टिविटीज़ एज वेल लाइक वैक्सीनेशन, टीटी का इंजेक्शन लगता है कैडेट्स को, और उनके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उनका लगेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी यूनिफॉर्म होती है, मुफ्ती होती है, ये सारी चीज़ें कैडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और फाइनली आपका होता है रिपब्लिक डे कैंप इन दिल्ली कैंट, जो कि 1 जनवरी को स्टार्ट हो जाता है एंड इट लास्ट ऑन 29 और 30 जनवरी। नाउ मूविंग ऑन टू इवेंट एसोसिएटेड विद रिपब्लिक डे कैंप। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रिपब्लिक डे कैंप आपका एक कलेक्शन है इवेंट्स का। जितनी भी एनसीसी में इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे नेशनल लेवल पे कलेक्टिवली रिपब्लिक डे कैंप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। तो जो पहला इवेंट है डेट इज़ ड्रिल। ड्रिल में भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ राजपथ, दैट टेक पार्ट इन Rajpath contingent on 26th of January, and the another one is Prime Minister rally that take parts in the parade on 28th of January. The another event is Guard of Honor. जितने भी विजिटर्स आपके दिल्ली कैंट में आते हैं टू व्यू द रिपब्लिक डे कैंप, उन सब के लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता है दिस इज़ बाय द गार्ड ऑफ ऑनर कैडेट्स एंड कंटिजेंट। द अनदर वन इज़ फ्लैग एरिया। सो फ्लैग एरिया के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी दैट व्हाट इट इज़ और कैसे किया जाता है, कैसे सिलेक्शन होता है। बट अगेन ब्रीफ में फ्लैग एरिया इज़ नथिंग बट अ 3D पोस्टर। जैसे हम लोग पोस्टर बनाते हैं ऑन शीट, वैसे ही एक 3 डायमेंशन पोस्टर बाय यूजिंग मार्बल्स एंड कलर्स आपका बनाया जाता है ऑन ग्राउंड। तो हर एक डायरेक्टरेट को उनका एक थीम दिया जाता है, उस थीम के बेसिस पे वो अपना फ्लैग एरिया प्रिपेयर करते हैं। Flag area is again divided into 2 parts, that is drawing and briefing. तो ड्राइंग पार्ट्स में वो कैडेट्स आते हैं जो फ्लैग एरिया को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको फाइनल फिनिश देते हैं 3D फॉर्म में। और ब्रीफिंग पार्ट में आपके वो कैडेट्स आते हैं जो उस फ्लैग एरिया को ब्रीफ करते हैं, जो भी विजिटर आपका दिल्ली कैंट में आते हैं। देन अनदर इवेंट इज़ बेस्ट कैडेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट रिपब्लिक डे कैंप में आपके बेस्ट कैडेट होते हैं फ्रॉम ऑल दी 3 विंग्स, दैट इज़ आर्मी, नेवी एंड एयर विंग। और हर एक विंग से अपना सीनियर विंग एंड सीनियर डिवीजन का एक कैडेट होता है, दैट इज़ 1 मेल कैडेट एंड 1 फीमेल कैडेट।
So overall 6 cadets from senior division and senior wing. इसके अलावा आपके जूनियर डिवीज़न एंड जूनियर विंग से भी कैडेट्स को लिया जाता है, जो कैडेट स्कूल में होते हैं अभी, जिनके पास स्कूल में एनसीसी होती है. नाउ देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद बेस्ट कैडेट. वन इज़ DST, दैट इज़ ड्रिल सिलेक्शन टेस्ट. अनदर वन इज़ फायरिंग. देन देयर इज़ रिटन टेस्ट एज वेल. देन ग्रुप डिस्कशन एंड फाइनली इंटरव्यू. नाउ द अनदर इवेंट इज़ कल्चरल एक्टिविटीज़. तो कल्चर भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिपब्लिक डे कैंप का. इसमें भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है लाइक ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, देन बैलेट होता है और फाइनली NIAP दैट स्टैंड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम. तो ये सारे आपके मेन इवेंट्स हैं जो रिपब्लिक डे कैंप में होते हैं. यहाँ पे कुछ और इवेंट्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं जिससे बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं हैं. सो दीज इवेंट आर R&B कॉम्पिटिशन. तो आपके बेसिकली हॉर्स राइडिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे करवाए जाते हैं, जिसके लिए अलग से आपके R&B यूनिट्स के कैडेट आते हैं. देन अनदर वन इज़ लाइन एरिया. जो भी आपके बैरक की हालत कैसी है, आपने कैसे उसको मेंटेन करके रखा है, आपके रूम्स कैसे हैं, कितना क्लीन है, इसके बेसिस पे आपका एक लाइन एरिया कंपटीशन होता है जो कि रिपब्लिक डे कैंप में 3 बार कंडक्ट करवाया जाता है. देन देयर इज़ मास्टर ऑफ सेरेमनी, द बेस्ट स्पोक पर्सन, देन एरो मॉडलिंग एंड ऑल्सो शिप मॉडलिंग. तो ये सारे आपके इवेंट्स हो गए जो रिपब्लिक डे कैंप में करवाए जाते हैं. Now moving on to a summary of Republic Day Camp in 4 to 5 sentences. So the first one is that Republic Day Camp is a culmination of all the NCC training activities, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि रिपब्लिक डे कैंप एक कलेक्टिव कैंप है सारी एक्टिविटीज़ का. देन रिपब्लिक डे कैंप इज़ हेल्ड एट गैरिसन परेड ग्राउंड एट दिल्ली कैंट. तो दिल्ली कैंट में आपका RDC करवाया जाता है फ्रॉम 1 जनवरी टू 29 जनवरी. बल्कि काफ़ी सारे डायरेक्टरेट के कैडेट्स आपके 28 या 29 दिसंबर से ही यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं फॉर दी सेटलमेंट. देन ऑल दी 17 डायरेक्टरेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया दे टेक पार्ट इन दिस कैंप एंड दे कम्पीट टुगेदर इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. और इस बेसिस पे, इस कॉम्पिटिशन के बेसिस पे आपकी रैंकिंग तैयार की जाती है ऑफ डिफरेंट डायरेक्टरेट्स. कैंप आपका इनाग्रेट किया जाता है बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो आपका कल्मिनेशन होता है, एंड होता है कैंप का, इट इज़ विद द प्राइम मिनिस्टर रैली ऑन 28 जनवरी. देयर आर सेवरल विजिटर्स हु विजिट द रिपब्लिक डे कैंप. सो दे आर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन अदर कैबिनेट मिनिस्टर, then also Chief Minister of Delhi, the Chief of all the 3 services, Army, Navy and Air Force, and also different state ministers and VIP persons. तो इन सारे विजिटर्स एंड VIPs के द्वारा रिपब्लिक डे कैंप को विज़िट किया जाता है फ्रॉम 1 to 29 जनवरी. Now moving on to some of the beautiful pictures of my Republic Day camp and my experience. So this is one of the picture from inter-battalion competition. I've already told you कि inter-battalion competition आपका first step होता है towards the Republic Day camp. यहाँ पे आपका बटालियन के कैडेट्स के साथ competition होगा, और जो कैडेट्स further divide होंगे they will move to inter-group competition. इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन में आपके कैडेट्स को अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाएगा, और जो सेलेक्टेड कैडेट्स होंगे इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे विल मूव टू Pre-RD कैडर 1. Pre-RD कैडर में भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, और उन एक्टिविटीज़ में जो कैडेट्स मेरिटोरियस कैडेट्स होते हैं उनको फर्दर सेलेक्ट किया जाता है फॉर Pre-RDC कैडर 2. अगेन इन द सेम वे Pre-RD कैडर 3 कंडक्ट करवाया जाता है, और RD कैडर 3 तक आपके ऑलमोस्ट कंटिंजेंट को फाइनलाइज कर दिया जाता है, एंड फॉर द फाइनल सिलेक्शन आपका लॉन्चिंग कैडर होता है. तो लॉन्चिंग कैडर में आपकी सारी एक्टिविटीज़ के कैडेट को फाइनलाइज किया जाता है कि कौन राजपथ में होगा, कौन गार्ड ऑफ ऑनर में होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर रैली में होगा, और
उनको जितना भी आपका लगेज होता है फॉर रिपब्लिक डे कैंप वो प्रोवाइड किया जाता है, लाइक रक्सैक हो गया, बैग्स हो गए आपके, डिफरेंट आइटम्स हो गए, देन मुफ्ती हो गई, यूनिफॉर्म हो गए, ड्रिल शूज़ हो गए एंड एक्सेट्रा। इसी कैंप में कैडेट्स को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है फॉर टिटनेस एंड अदर वैक्सीनेशन। और इस तरह से आपका स्टार्ट होता है फाइनल रिपब्लिक डे कैंप। फाइनल रिपब्लिक डे कैंप के लिए आपके पहले ही 28 या 29 दिसंबर को ही डिफरेंट डायरेक्टरेट के कैडेट दिल्ली आ जाते हैं थ्रू बसेस और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक ट्रेन। और क्योंकि हम लोग दिल्ली डायरेक्टरेट के ही थे तो हम डायरेक्टली ही आपके फर्स्ट डे सीधा बस बोर्ड करके दिल्ली कैंट चले गए थे। तो जैसे ही आप अंदर कैंट में जाते हो और दिल्ली कैंट में जाते हो वेयर रिपब्लिक डे कैंप इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, वहाँ पे आपको बैरक प्रोवाइड किया जाता है टू स्टे। तो इन बैरक्स में गर्ल्स के बैरक में आपके डबल बेड होते हैं एंड बॉयज़ बैरक में सिंगल बेड। तो बेसिकली इन बैरक्स के लिए कंपटीशन कंडक्ट करवाए जाते हैं डेट इज़ नोन एज लाइन एरिया कंपटीशन। लाइन एरिया कंपटीशन आपके रिपब्लिक डे कैंप के दौरान 3 बार होता है, एक स्टार्टिंग में ताकि आप लोग वेल सेटल्ड हो जाओ अपने बैरक्स में, एक बीच में एंड फाइनली एक कैंप के लास्ट में, ताकि जो कैडेट्स हैं वो अपना डिसिप्लिन और अपने बैरक को वेल मेंटेन करके रखें। लाइन एरिया में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं इंक्लूडिंग योर बैरक्स। इवन जो आपकी अलमीरा होती है उसमें आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपनी यूनिफॉर्म और मुफ्ती को रखना होता है, इंक्लूडिंग अदर आइटम्स लाइक सोप, डिटर्जेंट, देन आपका बैरेट हो गया, बेल्ट हो गई, शूज़ हो गए, इन सब का एक ऑर्डर होता है टू रिप्रेजेंट इट इन लाइन एरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस जितना भी आपका बाहर का एरिया है आपको उसको पेंट करके वेल डेकोरेट करना पड़ता है थ्रू ऑल बाय यूजिंग ऑल दी प्रॉप्स लाइक फ्लैग हो गया, देन आपके स्टेट के कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गए, इन सब की मदद से आपको अपने बैरक को और उसके आसपास के एरिया को डेकोरेट करना होता है। और इसके बेसिस पे आपके लाइन एरिया कंपटीशन के कैडेट्स और विनर्स को डिसाइड किया जाता है। So this is all about the line area. Now moving on to roll call. तो जैसे ही आपका रिपब्लिक डे कैंप स्टार्ट होता है हर दिन के एंड में स्टार्टिंग में सुबह बॉयज़ बैरक में एंड गर्ल्स बैरक में रोल कॉल होता है, देन जो फाइनल रोल कॉल होता है वो आपका 17 डायरेक्टरेट्स का साथ में होता है इवनिंग में। तो रोल कॉल का जो ड्रेस कोड था डेट वाज बेसिकली मुफ्ती। नाउ रोल कॉल में आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होती थी लाइक एनसीसी सॉन्ग एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर अनदर डे एक्टिविटीज़। और काफ़ी बार ऐसा होता था हर दिन ऑलमोस्ट कि जिसका बर्थडे है उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था विद ऑल दी अदर 17 डायरेक्टरेट्स इंक्लूडिंग द ऑफिसर। नाउ मूविंग ऑन टू फ्लैग एरिया। तो फ्लैग एरिया जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इन शॉर्ट आपका एक 3D पोस्टर है जिसको मार्बल्स की मदद से और कलर्स की मदद से एक 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है ऑन लैंड। तो हर डायरेक्टरेट को अपना अपना एक एरिया प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो अपने थीम से जो उनको थीम मिला है उससे रिलेटेड फ्लैग एरिया बनाएंगे। इसको बनाने वाले कैडेट्स दूसरे होते हैं डेट आर इंक्लूडेड इनटू द ड्राइंग पार्ट ऑफ फ्लैग एरिया and the other cadets, basically the best cadet, they brief the flag area that what it is representing. तो फ्लैग एरिया कंपटीशन आपके रिपब्लिक डे कैंप के स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, दिन सूखने में, और फाइनली ब्रीफिंग का स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए आपका फ्लैग एरिया बहुत पहले स्टार्ट कर दिया जाता है इवन बिफोर राजपथ सिलेक्शन एंड इवन बिफोर प्राइम मिनिस्टर रैली सिलेक्शन। नाउ द अनदर इवेंट इज़ राजपथ डेट इज़ अंडर ड्रिल। तो ड्रिल के लिए हर एक डायरेक्टरेट से कैडेट सेलेक्ट किए जाते हैं और वो कैडेट्स दिल्ली कैंट जाकर कलेक्टिवली 17 डायरेक्टरेट के कैडेट्स के साथ compete करते हैं टू बी इन द फाइनल राजपथ कंटिंजेंट। तो 17 डायरेक्टरेट के कैडेट्स में से एक राजपथ का कंटिंजेंट बनाया जाता है एंड विद द टाइम
टिल 26 जनवरी उनके सिलेक्शंस कंडक्ट होते रहते हैं और फाइनल जो आपका कंटिजेंट होता है वो 25 जनवरी को फाइनलाइज किया जाता है. सो दिस इज़ द राजपथ. नाउ द अनदर इवेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर रैली. अपार्ट फ्रॉम राजपथ, ड्रिल का जो कंपटीशन होता है दैट इज़ ऑल्सो इन प्राइम मिनिस्टर रैली. इसके लिए कैडेट्स के अगेन सिलेक्शन करवाए जाते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी डायरेक्टरेट, एंड हर डायरेक्टरेट ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिलेक्शन इट फॉर्म इट्स फाइनल कंटिजेंट फॉर पीएम रैली. प्राइम मिनिस्टर रैली के अंदर आपके 2 से 3 कंपटीशन करवाए जाते हैं अमंग दी 17 डायरेक्टरेट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंपटीशन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन ऑफ ईच एंड डायरेक्टरेट इज डिसाइडेड. एंड देन फाइनल जो कंटिजेंट होता है इट टेक पार्ट इन 28 जनवरी प्राइम मिनिस्टर रैली. दैट इज़ बेसिकली द कल्मिनेशन ऑफ रिपब्लिक डे कैंप. Now moving on to another important event of RDC, that is Guard of Honor. तो गार्ड ऑफ ऑनर के आपके सिलेक्शन स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं फ्रॉम 3rd to 5th of January, and the selected cadets from each and every directorate for Guard of Honor, they take part at national level selection, and those cadets who got selected there, they are the final part of Guard of Honor contingent. तो जो भी आपका विजिटर होता है उसके लिए जो फर्स्ट इवेंट होता है डेट इज़ गार्ड ऑफ ऑनर, देन दे मूव टू टी पार्टी एंड फाइनली टू द कल्चरल प्रोग्राम. नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिशन्स देयर आर अदर इवेंट्स एज वेल इन रिपब्लिक डे. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट इज़ विजिट टू डिफरेंट मिनिस्टर्स हाउस or the visit of different ministers to Delhi Cant for Republic Day camp. So one of the visit is of cadets to Defense Minister. Then another one is the visit of Chief of Army Staff to Delhi Cant. Then the visit of CM of Delhi to Delhi Cant. And the final one is the visit of cadets to President. Now, जितने भी डायरेक्टरेट्स आपके दिल्ली आ रखे होते हैं बिफोर द कल्मिनेशन ऑफ रिपब्लिक डे कैंप उन सबको दिल्ली दर्शन करवाया जाता है. तो इन बिटवीन मिड जनवरी में बिफोर द कल्मिनेशन, बिफोर 28 एंड 26 ऑफ जनवरी, सारे डायरेक्टरेट्स को दिल्ली दर्शन करवाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स उनको दिखाए जाते हैं, एंड द स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली एंड द डिफरेंट history that is associated with it. So we have been to Humayun Tomb and also to the Qutub Minar. And last but not the least, one of the important event of RDC is cultural. And as I've already told you, there are so many activities in cultural, that is group song, group dance, ballet, NIAP. एंड कल्चर में भी आपके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं अमंग 17 डायरेक्टरेट्स, एंड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट विजिटर्स के सामने इन परफॉर्मेंसेस को परफॉर्म करवाया जाता है, और इस बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है ऑफ कल्चर. सो इन दिस वे द रिपब्लिक डे कैंप एंड्स, एंड इट not only bring the cadets of 17 directorates together, but also inculcated the sense of togetherness, the sense of unity, discipline, leadership among them. And not only this, it has provided different experiences to each and every cadet. The cadet who took part in this camp, they became more stronger and more self-confident with the events and competitions that were there, and it provided us with lots of memories to cherish for lifetime. So that was all about Republic Day Camp. मैं हर एक इवेंट को और हर एक सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करूँगी in my further videos. Till then, please like, subscribe and also press the bell icon for future notification.